Right, so I've just started the recording. Today we're going to start with new chapter of grammar, that is articles, chapter number 6. The first article is a. So let's discuss about what is the usage of a. कब use करते हैं हम article a? We use a before a word beginning with a consonant sound. Okay? Consonant sound से जब कोई हमारा word start होता है तो उसके पहले हम a use करते हैं. So before that, I want you all to write in the chat box कि English language में vowels कौन-कौन से होते हैं? Which all vowels, जिसे आप vowels कहते हो, but correct pronunciation is vowels. So English में कौन-कौन से vowels हैं? Write in the chat box. आपको पता है कि there are 5 vowels in English. Which are they? Very good, Raghav. It is A, E, I, O, U. Okay, A, E, I, O, U. ये हमारे 5 vowels हैं, right? तो consonants कौन से होते हैं? Other alphabets. A, E, I, O, U के अलावा जितने भी हमारे alphabets होते हैं, they are the consonants, right? A, E, I, O, U के अलावा जितने भी letters होते हैं, they all are the consonants. वो हमारे consonants हैं. For example, give me the examples of consonants now. Consonants के examples देखिए जरा. Okay, you all have written the examples or the number of vowels we have. Now write the examples of the consonants. Consonants कौन-कौन से हैं? Okay, B, H. Very good, Devansh. B, C, M, N, G, J. Very good. तो ये सभी हमारे consonants हैं. तो जब बेटा हमारा कोई word start होता है एक consonant sound से, ठीक है? एक consonant sound से start हो रहा है और वो सिर्फ एक है, and it is only one. Then we use the article a. फिर हम article a use करते हैं. तो वो कैसे होता है? For example, a fruit. अब fruit किससे start हो रहा है? F से, right? Fruit F से start हो रहा है. So, first sound is there. अब bicycle. Bicycle का sound क्या है? किससे start हो रहा है? It is B, B sound. इसीलिए हम a use करते हैं. उसी तरह से a motor car, a grocer, a European man. अब मैम ने जो 4 एग्जांपल्स दी, a fruit, a bicycle, a motor car, a grocer, इन सभी की आप देखोगे जो स्टार्टिंग लेटर थे F, B, M, G, ये क्या थे? कॉन्सोनेंट्स थे, है ना? लेकिन जो 5th एग्जांपल है a यूरोपियन मैन, यूरोपियन तो स्टार्ट हो रहा है E के साथ. E is a vowel, तो मैम ने एन क्यों यूज नहीं किया? आपने सेकेंड क्लास में आर्टिकल्स किए हैं. When a word starts with a vowel sound, then we write an before it. उसके पहले हम an लिखते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी तो यूरोपियन मैन लिखा हुआ है. यूरोपियन का E है, E is a vowel. तो वैसे तो an यूरोपियन मैन होना चाहिए था, तो मैम ने अ यूरोपियन मैन क्यों लिखा? वो इसलिए कि जब आप यूरोपियन को बोल रहे हो तो आपकी साउंड क्या आ रही है? य साउंड, यूरोपियन, है ना? य साउंड आ रही है और य वाउल नहीं है. समझ में आ रहा है सबको? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सो यूरोपियन मैन जब हम बोल रहे हैं तो बेटा ई हमारा वाउल है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो य की साउंड है और य साउंड वाउल साउंड नहीं होती. हमारे जितने वाउल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें कहीं पर भी य साउंड नहीं है. ओके, सो दैट इज व्हाई विल यूज अ यूरोपियन मैन हम इसको कहेंगे. विल क्लियर इट मोर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. सो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि अ हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी ऐसे वर्ड की बात कर रहे हैं which starts with a consonant sound और वो एक होना चाहिए. Only then we can use a. Next is use of an. अब हम
एन कब यूज करते हैं? We use an before a word with a vowel sound or a silent h. And हम कब यूज करते हैं? जब हमारा कोई वर्ड vowel sound से स्टार्ट हो रहा है. For example, he gave me an orange. तो orange क्या है? स्टार्ट हो रहा है एक vowel sound से, इसलिए हम an orange कहेंगे. I gave her an ink pot. ink pot I से स्टार्ट हो रहा है, that is why हम an यूज करेंगे. I want an egg. Egg again starts with a vowel sound, इसलिए हमने an यूज किया. He is an honest man. अब honest की स्पेलिंग देखो, HONEST. honest starts from H, लेकिन H यहाँ पर साइलेंट है. और हम क्या बोल रहे हैं? honest साउंड है O की. O की साउंड है which is a vowel, that is why हमने an यूज किया. ओके, तो ये था हमारा यूजेज और an का. Now let me just ask you. You all have to write the answer in the chat box. Chat box में आप लिखोगे apple. So what will you use before apple? Apple से पहले आप क्या यूज करोगे? A और an? Write in the chat box. Apple से पहले आप क्या यूज करेंगे? A और an? An apple. Okay, very good. Right. Next is an apple. This is right. Perfect. If I say boy, अब boy से पहले हम क्या यूज करेंगे? Tell me. Boy. Very good. So we'll say a boy, क्योंकि boy जो है it starts with a consonant sound. Next is umbrella. What do we have to use before umbrella? An umbrella. Perfect. So we'll write an umbrella. हम an umbrella करेंगे इसको. अच्छा. Now if I say European, अब बताइए a और an, what do we have to use? Some children are saying and, some are saying a. Who can explain? Write in the chat box. Who wants to tell me कि European से पहले क्या आएगा? A या an और क्यों आएगा? Can somebody explain? Okay, Jyotsna. Unmute yourself, Jyotsna. Explain. मैम एरोप्लेन के पहले ओ आएगा. Okay, your answer is correct, but why a? Why not an? मैम बिकॉज ई टू वॉवल होता है वो, लेकिन जब हम एरोप्लेन बोलते हैं उसकी आवाज जियो आती है और वॉवल में यो नहीं होता. Okay, very good. That's perfect. Very good. All right. So Avya Gupta, would you like to tell me again? Unmute yourself, Avya. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Avya. Please speak. मैम मेरे ऑर्डर से पहले आएगा बिकॉज जब हम ई बोलते हैं तब य की साउंड आती है और य वाउल नहीं है, इसलिए वहाँ आएगा. Very good. और जो हमारा यूरोपियन है, यूरोपियन का जो फर्स्ट साउंड हम जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए साउंड. ठीक है ना? तो इसलिए वो य साउंड है, और य साउंड जो है दैट इज नॉट अ वाउल साउंड. सो दैट्स व्हाई विल यूज अ यूरोपियन मैन. ठीक है? दिस इज द थिंग. नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व वन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर 1. एक्सरसाइज नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे. ऑलराइट. सो अब आप क्या करोगे? जब भी आप आंसर दोगे बेटे, तो आपने क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है. ओके? एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, डैश एग एंड डैश स्पून. क्वेश्चन नंबर लिख के आफ्टर दैट गिव द आंसर. सो लेट्स स्टार्ट.
Fill in each blank with A or N. Dash egg and dash spoon. What's the answer? Okay, very good. An egg and a spoon. An egg and a spoon. That's the correct answer. An egg and a spoon. Very good. Number 2. Please come to number 2 now. Number 2. Dash mango and dash apple. Dash mango and dash apple. Mango जो है वो M sound से है. Okay, perfect. A mango and an apple. A mango and an apple. All right. A mango and an apple. A mango and an apple. Apple से पहले an आएगा. Okay. Number 3. Dash wooden box. Dash wooden box and dash iron box. Dash wooden box and dash iron box. Wooden box से पहले क्या आएगा बेटे? Write the question number against it. Number 3. It is a wooden box, okay, and dash iron box. अब हम iron से पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि iron starts with an I. Iron starts with an I. तो हम an use करेंगे. An iron box. An iron box. Okay. Number 4. Dash oak and dash acorn. Oak और acorn क्या है? They are trees. ये trees होते हैं. Oak and acorn, they are trees. So dash oak and dash acorn. What's the answer? An oak and an acorn. An oak and an acorn. दोनों में ही an आएगा. Very good. So this way you have to complete this exercise. इस तरह से आपको complete करनी है ये. All right. Fine. Now let's move to the next part of your chapter, which describes about the. जो हमें बताएगा कि हम the use कब करेंगे. All right. The use कब करेंगे वो देखते हैं हम. So again, I'm going to share my screen. Okay, here we have the use of article the. अब हम the कब use करेंगे वो हम check करते हैं. So the is used before a particular person or thing. The कब हम use करते हैं? जब हम किसी specific person के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम बता रहे हैं specially किसी के बारे में कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. Okay, जब हम already किसी के बारे में जानते हैं, उसके बारे में हम बात करें, तब हम the use करते हैं. Now for example, the bag of oranges was stolen. तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि कौन सा बैग स्टोल हुआ, किसको चोरी किया गया. The bag of oranges. एक स्पेशल चीज बताई है कि उस बैग में ऑरेंजेस थे. सिंपली ये नहीं कहा कि एक बैग चोरी हुआ. They are telling us that वो बैग जिसमें ऑरेंजेस पड़े थे वो चोरी हुआ है. ओके, सो the हम तब यूज करेंगे जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में हम कुछ स्पेशल बता रहे हैं. नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम यूज करते हैं द विद द रिवर्स. फॉर एग्जाम्पल द यमुना, द गंगा, द नर्मदा, द नाइल. फिर माउंटेन रेंजेस. माउंटेन रेंजेस जैसे कि द हिमालयास. माउंटेन रेंज मीन्स बहुत सारे पहाड़ों का एक कलेक्शन है, उसे हम द हिमालयास कहते हैं, राइट. तो जितने भी हमारे माउंटेन रेंजेस हैं उनके लिए हम द यूज करेंगे. देन विद द मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स लाइक the famous buildings, famous old buildings like the Red Fort, Hawa Mahal, then we have Taj Mahal. ये सारे हमारे monuments है, मतलब जो important buildings है इंडिया की. All over the world जितने भी important buildings है, with them we use the newspaper. आपके घर में जो भी English newspaper आता है, if you have checked any time, उनके पहले the use किया जाता है. The Tribune, the Economic Times, right? So this kind of thing is done. Newspaper से पहले भी हम the use करते हैं. Holy books, those books which are related to God, जो कि हम मंदिर में use करते हैं, उन books को भी हम the से start करते हैं. The Ramayana, the Bible, the Quran, the Gita, इस तरह से. Then the planets and unique objects. जितने भी हमारे planets हैं, जितने भी unique objects हैं, like Earth. Earth पूरी दुनिया में एक है, एक ही पीस है अर्थ का. ऐसा नहीं है कि अमेरिका की अर्थ अलग है और इंडिया की अर्थ अलग है, ऐसे नहीं है. पूरी की पूरी अर्थ जुड़ी हुई है आपस में. सो इट इज ओनली वन पीस, राइट. सो जो चीजें यूनिक है, एक है. द अर्थ, द स्काई, पूरी वर्ल्ड का स्काई भी एक है ना. सो द अर्थ, द स्काई, इनके साथ हम द यूज कर रहे हैं. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द सुपरलेटिव डिग्री, इसके बारे में आपको पता नहीं है, बट जब हम किसी चीज के बेस्ट होने के बारे में बात करते हैं, ओके, जैसे हम बोले दैट शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास. तो देखो बेस्ट के आगे हम द लगा रहे हैं. जब आप कहते हो ऑल द बेस्ट, तो आप बेस्ट के आगे द लगाते हो. तो जब भी आप किसी की तारीफ करना चाह रहे हो, आप बताना चाह रहे हो कि वो बेस्ट है. टॉल है तो टॉलेस्ट है, अगर लंबा है तो सबसे लंबा है, टॉलेस्ट, तब भी हम द यूज करेंगे. अगर छोटा है वो तो सबसे छोटा है, द स्मॉलेस्ट. ओके, तो जब ये हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, जब किसी की कोई तारीफ कर बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा है उस चीज में वो, तो भी हम द यूज करते हैं. ओके, सो वी जस्ट डिड दैट कि हम द कब यूज करते हैं. नंबर वन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग जिसके बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, तब हम यूज करते हैं. Number two, we use the with the rivers. Number three, with the mountain ranges. Number four, with the monuments. Number five, with the newspapers. Number six, with the holy books, which are related to God. And then number seven is planets and unique objects. Number eight is superlative degree. Superlative degree means when you are using a describing word. जब आप describing word use कर रहे हो, like tall, small, large, big, तो आप अकेला वो डिस्क्राइबिंग वर्ड ओरिजिनल फॉर्म में नहीं यूज कर रहे हो, आप बोल रहे हो बिगेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ऐसे के साथ हम द यूज करते हैं, राइट. नाउ आई हैव अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, some examples I have. Okay, so you have to solve these examples. The first sentence is dash Ramayana is dash holy book. तो बताइए मुझे, what shall be the answer to this question? Dash Ramayana. Write in the chat box. रामायण से पहले हम क्या यूज करेंगे, अ और द. Okay, very good. It is the Ramayana. उसके बाद the Ramayana is dash holy book. अब holy book के आगे हम क्या यूज करें, अ, द और एन. What shall we use before holy book? Okay, Samrit is asking about the meaning of European man. यूरोप एक, मतलब जो लोग बेटे यूरोप में रहते हैं, यूरोप एक प्लेस है, तो जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको हम यूरोपियन कहेंगे. जैसे जो लोग इंडिया में रहते हैं हम उनको इंडियंस कहते हैं ना. जो इंडिया में रहते हैं वो इंडियंस होते हैं, वैसे ही जो यूरोप में रहते हैं वो यूरोपियन है. इट्स जस्ट दैट. ओके, वेरी गुड. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज The Ramayana is a holy book. ये इसका आंसर है. The Ramayana is a holy book. All right. चलिए, let's talk about the next example now.
I want dash eraser, dash notebook and dash bag. मुझे एक इरेजर चाहिए, एक नोटबुक चाहिए और एक बैग चाहिए. I want dash eraser, dash notebook and dash bag. Tell me the answer. इरेजर से पहले हम क्या यूज करेंगे? Eraser starts with a vowel sound. Okay, Jyotsna is asking about oak and acorn. They are the names of trees. ये trees होते हैं बेटे. Oak tree, acorn tree. Okay, they are names of trees. Right, Jyotsna? Okay, I want dash eraser, dash notebook, and dash bag. Give me the answer, all of you. Ekveer is saying, I want an eraser, a notebook, and a bag. Very good. The answer is an, a. I want an eraser, a notebook, and a bag. Okay, next one. I met dash child in the school. Dash child was very intelligent. Now, this is a bit tricky. ये आपको थोड़ा मैं समझा देती हूँ. Okay, with this we are basically going to clear the concept of using a or the. अ और एन हमें यूज करना आ जाता है. जहां पर वाउल साउंड है उससे पहले हम एन यूज करते हैं. जहां वाउल साउंड नहीं है वहां हम अ या द यूज करते हैं. अब कैसे पता चलेगा हमें कब अ यूज करना है और कब द यूज करना है? क्योंकि द जो है वो हम सबके साथ यूज कर सकते हैं, चाहे कोई चीज सिंगुलर है चाहे प्लूरल है. अ हमेशा एक चीज के साथ यूज होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. अ को हमेशा हम एक चीज के साथ यूज करते हैं जब वो वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है. बट व्हाट अबाउट द? द कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर थिंग आल्सो एंड विद प्लूरल आल्सो. द को हम एक चीज के साथ भी यूज करते हैं और बहुत सारी चीजों के कलेक्शन के साथ भी हम यूज कर सकते हैं. बट कैसे पता चलेगा कि कब अ यूज करना है कब द यूज करना है? तो उसके लिए दिस एग्जांपल इज वेरी फाइन. ओके, जब हम किसी चीज के बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, ओके, अंडरस्टैंड केयरफुली. जब हम किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, we are talking about it for the very first time, then you have to use a. तब अ यूज करना है. एंड नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम द यूज करेंगे. ठीक है, प्रोवाइडेड इसमें वाउल साउंड नहीं होनी चाहिए उन वर्ड्स के साथ. ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं वो वर्ड्स की विच डू नॉट स्टार्ट विद अ वाउल साउंड, तो उनको हम अ या द उनके साथ यूज कर सकते हैं. बट हाउ टू नो दैट वेदर टू यूज अ और द? So just remember, if we are talking about a thing for the first time, then use a. If we talk about it for the second time, then we have to use the. Now, in this example, see, I met dash child in the school. Dash child was very intelligent. तो हम बात कर रहे हैं कि मैं एक बच्चे से मिली स्कूल में. फर्स्ट टाइम उस बच्चे के बारे में बात की. मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ ना आपको उस बच्चे के बारे में. मैं एक बच्चे से मिली. और सेकंड सेंटेंस में मैं क्या कह रही हूँ? डैश चाइल्ड वाज वेरी इंटेलिजेंट. वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था. तो दैट मींस सेकंड सेंटेंस में मैं दोबारा उस बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ. सो इन द फर्स्ट ब्लैंक हम क्या यूज करेंगे? I met a child in the school, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने उस बच्चे के बारे में आपको बताया. और सेकंड ब्लैंक में उसके साथ हमने द यूज किया क्योंकि अब मैं उसके बारे में रिपीटेडली बात कर रही हूँ, दोबारा बात कर रही हूँ. द चाइल्ड वाज वेरी इंटेलिजेंट. इज इट क्लियर राजकमल? क्लियर हुआ? शो मी योर थम्स अप इफ इट इज क्लियर. किस किस को समझ में आ गई ये चीज कि अ और द कब यूज करना है? when to use and when to use the. सबको समझ में आया? ओके, यक्षित आपको समझ में आया? नो, नहीं समझ में आया. ओके, अनम्यूट योरसेल्फ यक्षित. जिनको समझ में नहीं आता है प्लीज पूछना है. ओके यक्षित, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, बताइए क्या समझ में नहीं आया आपको? मैम वो जो आप बता रहे थे ना चाइल्ड वाला, आई मेट चाइल्ड, वो वाला. यस. ओके, सो इसमें बेसिकली हम देखो बेटे बात कर रहे हैं अ और द को यूज कब करना है.
ठीक है. So in the first sentence क्या लिखा है? I met a child in the school. मैं आपको एक बच्चे के बारे में बता रही हूँ कि मैं एक बच्चे से मिली थी स्कूल में, तो तब मैं यूज करूंगी अ. फर्स्ट टाइम मैंने आपको एक बच्चे के बारे में बताया तो आई यूज्ड अ, और सेकेंड सेंटेंस में मैंने फिर से आपको उस बच्चे के बारे में बताया तो मैंने यूज किया द. ठीक है. So this is the way you have to solve these kind of sentences. Now let's have a look at some more examples. Number 4. Dash European man called me yesterday. Write in the chat box. Okay, Arman Gulzaud ki ID say yes, beta, you can go to the washroom. Dash European man called me yesterday. Is it a or an? A European man called me yesterday or an European man? It is a European man. Very good, all of you. A European man, क्योंकि यूरोपियन की साउंड ए साउंड नहीं है, य साउंड है, तो हम यूज करेंगे साथ में अ. बेसिकली वाउल साउंड होना चाहिए एन यूज करने के लिए. सो दिस इज अ. राइट. सो a European man called me yesterday. Now number 5. She met me for dash hour only. She met me for dash hour only. So अब आप देखो, look at it. She met me for dash hour only. Hour का मैं h pronounce नहीं कर रही, right? मैं h नहीं बोल रही. क्या बोल रही हूँ? hour, a sound. So a is a vowel, है ना? She met me for an hour only. क्योंकि चाहे h लिखा है hour में, लेकिन I am not speaking h. h is silent. तो मेरा word start हो रहा है hour से. Okay? So a is a vowel sound. That is why we will write an. She met me for an hour only. Next, there is dash box on the table. Dash box on the table. There is a box on the table. There is a box on the table. Okay, some children have doubts. Let me just complete this exercise, then I'll take your doubts. What is dash date today? हमने किया था कि द हम तब यूज करते हैं जब हम किसी यूनिक चीज की बात कर रहे हो, है ना, जो अपने आप में सिर्फ एक ही है. So this I will tell you. What is the date today? हम यहाँ पर the date लिखेंगे क्योंकि डेट तो बेटे हर रोज चेंज होती है ना. If today it is 30th of April, तो 30th April 2021 कभी भी दोबारा नहीं रिपीट होगी. हर दिन एक अलग डेट है. So every date is unique. So what is the date today? उन्होंने पूछा कि आज की क्या डेट है, तो जो डेट आज है वो ना कल थी और ना कल कभी आएगी. So it is unique. So what is the date today? Next, I have just had dash great idea. अब उस great idea के बारे में वो पहली बार बात कर रहे हैं. I've just had dash great idea. First time वो बात कर रहे हैं उसके बारे में. फर्स्ट टाइम बात करें बच्चे उस आइडिया के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अ. आई हैव जस्ट हैड अ ग्रेट आइडिया. Okay, let's skip sentence number 9. I want you to solve sentence number 11. Sentence number 9 and 10, 9 and 10, they are a bit tricky for you. You answer me about sentence number 11. My uncle used to be dash FBI agent. इसका आंसर दीजिए मुझे. My uncle used to be dash FBI agent. मेरे अंकल एक FBI एजेंट थे. अब आपने चेक करना है कि FBI स्टार्ट कौन सी साउंड से हो रहा है. वहां पे बोल रहे हैं F, ए साउंड से स्टार्ट हो रहा है. देखो, राइट. नॉर्मली क्या होता है, हम बोलेंगे फुलिश. फुलिश किससे स्टार्ट हुआ? फ साउंड से. लेकिन FBI कैसे स्टार्ट हो रहा है? F, right? A sound. So it is a vowel sound. That is why हमने an use किया. My uncle used to be an FBI agent. अच्छा, जरा ये देखिए. I have dash bag in my cupboard. What is the first answer?
I have dash bag in my cupboard. क्या लिखेंगे? I have a bag in my cupboard. Very good. I have a bag in my cupboard. So let me write a here. I have a bag in my cupboard. अब देखो डैश बैग इज ब्लू इन कलर. अब मैं दोबारा उस बैग के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? दोबारा उस बैग के बारे में बात करें तो अब हम लिखेंगे द. ठीक है, सबसे पहले मेरे फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बैग के बारे में फर्स्ट टाइम बताया. अब नेक्स्ट लाइन में मैं दोबारा आपको उसी बैग के बारे में बता रही हूँ तो मैं लिखूंगी द बैग इज ब्लू इन कलर. अब फिर से डैश बैग इज वेरी कॉस्टली. फिर से आपको उसी बैग के बारे में बताया जा रहा है. व्हाट शैल यू राइट देन? अगेन उसी बैग की बात हो रही है तो फिर से हम क्या लिखेंगे? द बैग इज वेरी कॉस्टली. नाउ नेक्स्ट देयर इज डैश इरेजर इन इट्स पॉकेट. इस बैग की पॉकेट में एक इरेजर है. इरेजर स्टार्ट्स विद ए साउंड, है ना? सो व्हाट शैल वी राइट क्विकली? There is an eraser in its pocket. Very good. Dash MBA graduate gave it to me. मुझे चलो let's just leave it. इसको हम नहीं करेंगे. It's a bit tricky for you. Now let me take your doubts. Okay, Raj Kaval, please unmute yourself. Raj Kaval, unmute yourself. What's your doubt? पूछो बेटे. मैम जो आप करा रहे हो